Hello students, how are you? Hope you all are well and doing study every day. And you know what? We have completed chapter number 6. Till chapter 6 we have completed of our reader book, not of grammar. Grammar we read in April month, but now first we want to complete this book 2 and 3. Total 15 chapters are there, I think. Yes, total 15 chapters are there in your reader book. 14 chapters, sorry. So we will complete these chapters and then again we will start our grammar book. Until then we will wait, maybe the schools will reopen, then in offline classes we will read it properly. Till then we have to complete this book, reader book. I hope you all are having books, and still if you haven't purchased, you have to purchase books, because without books you will be not able to understand the chapter properly. And one thing more, you are new in this class and you haven't seen the syllabus, the course, the books of a new class, so obviously you need the books and notebooks. So purchase books. If you can buy your books from the market, NCERT course syllabus you have to purchase. If you can buy easily from the market, you can, or if you can't get from the market, then you can come in the school. The books are available in the school also, so you can buy from here, books and notebooks both. And whatever works you are getting in assignments, you have to do it properly with good handwriting, chapter wise, date wise in your notebooks, because it will be beneficial for you beta in exam time. When you will go for exams, we will not get the time that passed back to revise this. So whatever works we are reading, whatever works you are getting now, whatever chapters we are reading now, you just write them in your notebook. So in exam time you can check backside and you can learn it. Otherwise it will be very difficult to you to read on self and then give exam. And you know very well, exam will definitely help by government in maybe it can be late, but exam will be there. So you have to do study, and this year you are having board exam, so do not waste your time and don't take it easy. At least 2 and 3 hours in whole the day you can give to your study. You had fun, a lot of fun in previous months. From March to June you were having fun, you were at home, you have played a lot. But now I'm not saying you to study whole the day, but I just want to say you only 2 and 3 hours you should give to your study in whole the day. Okay, and I hope you understood and you will follow whatever I have told you. I know very well. Now we will start chapter number 7. Who will play with me? What is the name of chapter? Who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? क्या आप भी कभी ये सवाल करते हो किसी से कि मेरे साथ कौन खेलेगा? Here in this chapter, in this story, there is a boy who asks, who will play with me? मेरे साथ कौन खेलेगा? And what happens with him? Actually, just read in the chapter. So, one question is there. What do you like more? आपको क्या ज़्यादा पसंद है? To study or to play? आपको पढ़ाई करना ज़्यादा पसंद है या फिर खेलना ज़्यादा पसंद है? I think to play. And second question, what will happen if you spend all of your time on playing and don't study? और आप सोचो, if you are not giving your time to study, whole the day you are playing, then what will happen? क्या होगा? अगर आप अपना पूरा टाइम प्लेइंग में, गेम्स में लगा देंगे, उसमें स्पेंड कर देंगे, then and you will not do study,
आप पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेंगे, विल स्टॉप इट, आप इसको बंद ही कर देंगे, देन व्हाट विल हैपन? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कि अगर मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो क्या होगा? क्या आपने सोचा है? सोचो, थिंक। अगर आप नहीं खेलते हैं तो क्या होगा, अगर आप नहीं पढ़ाई करते हैं तो क्या होगा? मीन्स अगर स्टडी को छोड़ने से आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है या फिर प्लेइंग को छोड़ने से आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है, once sit and think about it, you will feel, you will realize on self which is the most important for you, for your future, for your life, study or play. Okay, let's start the chapter. This is a story about a boy who does not like to study at all. ये स्टोरी एक लड़के की है जिसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। One day he meets some creatures. Creatures होते हैं प्राणी, जीव जंतु। And then he changes, और उसके बाद वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। Why does he change himself? वह अपने आप को चेंज क्यों कर लेता है? Let's find out. चलो ढूंढते हैं, पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है। This is रोहित। ये कौन है? रोहित। What is the name of the boy? Rohit. We are going to read this story about a boy and the boy's name is Rohit. He does not like his studies. उसे अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। All of his friends go to school daily, but he doesn't go there. उसके जो सारे दोस्त हैं वो डेली स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, बट वह नहीं जाता है। He wanders here and there. Wanders का मतलब होता है घूमना। वॉन्डर का मतलब होता है घूमना, बिना काम के, बिना किसी वर्क के, ऐसे ही घूमते रहना। He wanders here and there. One day he goes to the garden near his home. एक दिन उसके घर के पास में कोई गार्डन है, वह वहाँ जाता है। He finds no other children in the garden to play with. और वह देखता है कि वहाँ पे कोई भी दूसरा बच्चा नहीं है उसके साथ खेलने के लिए। He finds no other children in the garden to play with, यानी उसके साथ खेलने के लिए वहाँ कोई भी दूसरा बच्चा नहीं होता है। He sits on a bench. वह एक बेंच पे बैठ जाता है। Under the big banyan tree. एक banyan tree होता है, बरगद का पेड़ होता है बड़ा सा, उसके नीचे एक बेंच रखी होती है। तो रोहित है वो जाके उस बेंच पे बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, ही नोटिस अ पिकॉक डांसिंग. थोड़ी देर बाद में वह नोटिस करता है कि एक पिकॉक है वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है नियर द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स का मतलब होता है कि फ्लावर वाले प्लांट जो हैं उनके पास में जा कर के वो क्या कर रहा है, डांस कर रहा है. कौन? पिकॉक. सो द एलिफेंट इज डांसिंग नियर द फ्लावर बेड्स. फ्लावर बेड्स होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स का ग्रुप, वी कैन से. सो रोहित वॉक्स टू द पिकॉक एंड सेज टू हिम. रोहित है वो पिकॉक के पास जाता है और उसे बोलता है, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक सेज, पिकॉक बोलता है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ. आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. पिकॉक रिप्लाइज. द रोहित मीट्स अ डॉग. उसके बाद में रोहित किससे मिलता है? मीट मीन्स होता है मिलना. मीट मीन्स होता है मिलना. आफ्टर दैट, आफ्टर पिकॉक, द रोहित मीट्स अ डॉग. ही आस्क्ड हिम, विल यू प्ले विद मी. वह डॉग से भी पूछते हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर्स हाउस. मास्टर्स हाउस मतलब होता है अपने मालिक का घर, कि मैं अपने मालिक के घर की रखवाली कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. ही हैपन्स टू सी अ पैरोट. उसके बाद में वह देखता है एक पैरट को.
विल यू प्ले विद मी, सॉरी, ही हैपन्स टू सी अ पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स। उसके बाद में वो किस किस से मिलता है आफ्टर डॉग, पैरट से मिलता है, स्पैरो से मिलता है, क्रो से मिलता है एंड हॉर्स से मिलता है। ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, और सबसे वो सेम क्वेश्चन पूछता है, विल यू प्ले विद मी, वी आर बिजी, वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हम बिजी हैं, हमारे पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए। वी कैन नॉट प्ले विद यू, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। दे रिप्लाई, और वो जवाब देते हैं। दिस हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, और इस चीज़ का रोहित पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। इम्पैक्ट का मतलब तो प्रभाव होना, प्रभावित होना या फिर उसको अट्रैक्ट करना, ये चीज़ उसको थोड़ा फील होती है, उसे महसूस होता है। क्या? ही सेज टू हिमसेल्फ, वह अपने आप से बोलते हैं, ऑल ऑफ देम आर बिजी, यहाँ सब बिजी हैं। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, यहाँ सिर्फ मैं अकेला हूँ जो कि काम नहीं कर रहा हूँ, और बाकी जितने भी क्रिएचर्स यहाँ पे हैं ऑल आर बिजी इन डूइंग वर्क। ईच एंड एवरी वन हैव अ डिफरेंट वर्क बट दे आर बिजी, नो वन इज़ फ्री देयर टू प्ले विद रोहित। दे आर डूइंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग, यहाँ सिर्फ मैं अकेला ऐसा बंदा हूँ जिसके पास कोई काम नहीं है, जो कि काम नहीं कर रहा है। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, अब मैं भी अपना काम करूँगा और अपने आप को क्या बनाऊँगा, बिजी बनाऊँगा। माई सेल्फ का मतलब अपने आप को। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, और लेजीनेस का मतलब होता है आलसीपन। तो मैं अपना आलसीपन छोड़ दूंगा। ही रिटर्न्स होम एंड डिसाइड्स, तय करना। ही रिटर्न्स होम, वह वापस घर आता है। एंड डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली, और वह डेली स्कूल जाने के लिए तय करता कि मैं आज के बाद, मैं कल से डेली स्कूल जाऊंगा। ही स्टार्ट्स स्टडिंग अटेंटिवली, अटेंटिवली का मतलब होता है ध्यानपूर्वक, मन से, विद वी कैन से विद फुल कंसंट्रेशन, ओके। एंड completes his homework also, और उसके बाद वो अपना पूरा होमवर्क भी कंप्लीट कर लेता है। he learns his lesson regularly, वह अपने लेसन्स हैं वो रेगुलरली लर्न करना शुरू कर देता है। in the evening, शाम को, he goes to the playground and finds his friends there, शाम को जब वो खेलने के लिए पार्क में जाता है तो वहाँ उसको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। he plays with them for about an hour, और वहाँ वो उनके साथ कितनी देर खेलता है, ओनली एन आवर, 1 घंटे के लिए। आफ्टर रिटर्निंग होम, वापस घर आने के बाद, ही टेक्स हिज डिनर, वह अपना खाना खाता है, रात का खाना। एंड देन रिसीव्स देन ही रिवाइज का मतलब होता है रिवाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से दोहरान करना, दोबारा से याद करना। सो आफ्टर डिनर ही रिवाइजेज व्हाट ही स्टडीड एट स्कूल, कि मैंने आज स्कूल में क्या पढ़ा था, वो सारी चीज़ें वो रात को डिनर करने के बाद रिवाइज करता है। विद हिज चेंज इन हिज बिहेवियर, यानी उसका जो बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। ही इज़ नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन, अब उसे हर कोई पसंद करता है, यानी जब से उसका बिहेवियर, जब से उसका व्यवहार चेंज हुआ है उसके बाद से उसको सब लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं, सब उसे पसंद करने लगते हैं।
लगते हैं। हिज टीचर्स प्रेस हिम, प्राइज हिम का मतलब होता है उसको सम्मानित करना, फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय का पाबंदी, यानी उसके बाद से वो समय पर स्कूल जाता है और उसके टीचर्स भी उससे क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और उसको प्राइज़ भी देते हैं। प्राइज़ का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, प्राइज़ का मतलब होता है अप्रिशिएट करना, ओके। और पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पालन। समय का पालन करने वाला। तो वो उसके बाद से क्या करता, हमेशा डेली स्कूल जाता था, वो भी टाइम पे, ठीक है। तो इस वजह से उसके सारे जो टीचर्स हैं वो भी खुश होते हैं एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो फील प्राउड ऑन हिम। प्राउड मीन्स होता है गर्व। तो उसके पेरेंट्स को भी उसके इस व्यवहार से, उसके इस काम से प्राउड फील होता है, ओके। दिस वाज द चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर्स वी विल डू इन टुमारोज वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।